Here we solve a very important question or theorem which is written as here drfx. D means differential operator. We already know in previous class. D dash x. D dash fx means differentiation of x. Here it is written as drfx represents the rth differential coefficient. The d is differential coefficient, d2 means second order differential coefficient, d3 means third order differential coefficient, d4 means fourth order differential coefficient, and so on. Yani it is the symbol of ordinary differential coefficient or differential operator. From this we derive the following results. E, we already know E is the shifting operator, and here E is exponential कोफिशिएंट या एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू दी पावर ht. जैसे हम लोग लिखते थे e टू दी पावर x, e टू दी पावर x में लिखते थे हम लोग, यहाँ पे प्लस 2 में भी या लोअर उसके भी पढ़े थे कि 1 + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन. यानी यहाँ पे जो रिलेशन है, ये रिलेशन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट और यहाँ पे शिफ्टिंग के बीच में रिलेशन, यानी हमको एस्टेब्लिश करना है. सब यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे डी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो डेल्टा है ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. यहाँ भी डेल्टा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और डी है यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट. यानी ऐसी सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे जो हम लोग 1 by 1 रिलेशन को हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे, यानी डी फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, delta means forward difference operator. We already know how to define forward difference operator. Now here we use Taylor series to prove the given results. We apply Taylor series. First we use Taylor series. Function of x plus h. By Taylor series we know that function of x plus h, this equal to fx plus h f dash x plus h square by factorial 2 f double dash x plus dot 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 to infinity. ये आप जो देख रहे हैं डबल डॉट का मतलब है दो बार डिफरेंशियल, यही आपका d2fx जो यहाँ पे लिखे हैं कि drfx रिप्रेजेंट्स द rth डिफरेंशियल कोफिशिएंट. d2 मींस f डबल डैश x, d3 मींस f ट्रिपल डैश x, और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ये आपको अप्लाई किए बाय टेलर सीरीज. दिस टर्म बाय टेलर सीरीज वी ऑलरेडी know Taylor series in the first semester. Function of x plus h equal to fx plus h f dash x plus h square by factorial 2 f double dash and so on. And this term can be written as fx plus h f dash x dfx, differentiation of fx, differentiation of x means f dash x. Same we can write h square factorial h square by factorial 2 f double dash x means d2fx plus dot 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 and so. यानी यहाँ पे क्या किया हम लोग, f डैश की जगह dfx लिख दिए. यहाँ पे डबल डैश था तो d स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में था कि dr का मतलब है rth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, d2fx का मतलब है कि f डबल डैश x एंड सो. यहाँ पे fx है, यहाँ भी fx है, यहाँ भी fx है, तो आप चाहेंगे तो इसको आप आउटसाइड बाहर निकाल सकते हैं. तो क्या निकलेगा यहाँ से 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी एस 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 एफ एक्स. e to the power x. Now we remember the exponential series.
e to the power x, and the value of e to the power x is equal to e to the power x is equal to 1 plus x square by factorial 2 plus डॉट डॉट so a प्लस 2 में हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल सीरीज का है, उसी पैटर्न पे 1 प्लस एच डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 डॉट 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 एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज e to the power एच डी 1 ex की जगह एच डी एफ एक्स। फंक्शन ऑफ x प्लस h इक्वल टू e to the power h d f x. We already know by the definition of shifting operator. We already consider equation number 1. By shifting operator, we already defined in the previous lecture. E to the power fx, e to the power fx is equal to function of x plus h. ये आपको डिफिनेशन है शिफ्टिंग ऑपरेटर का, जिसको हम लोग ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस h का देखिए ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस टर्म कैन बी रिटन e to the power fx, और बाय टेलर सीरीज वी एक्सप्लेन हियर फंक्शन ऑफ x प्लस h इक्वल टू e to the power h d f x। यानी ये भी फंक्शन ऑफ x प्लस h के बराबर है और ये भी आपका फंक्शन ऑफ x प्लस h के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट from 1 and 2 we can write e f x function of x plus h is equal to e to the power h d f x. If we get both equation 1 and 2, then we can write e f x is equal to e to the power h d f x. Therefore here we omit यहाँ एफ एक्स, यहाँ पे देखिए एफ एक्स से एफ एक्स को हम लोग हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग e इक्वल टू e to the power h d, and it is the first result we have to prove, and in here we prove the first result e equal to e to the power h d, and so. Now with the help of this result we prove the second result. We already know the relation between shifting operator and forward difference operator. We can remember E equal to 1 plus delta. It is the relation between shifting operator and forward difference operator. Now we proceed to the explain the second result. HD equal to delta minus 1 by 2 delta square 1 by 3 delta cube, and so on. This term can be also be written as E equal to EHD. Also we can write E equal to 1 plus delta, this equal to e to the power HD. Here we apply E equal to 1 plus delta, we are लिख सकते हैं हम लोग, since E is equal to 1 plus delta, it is the definition of forward difference operator and shifting operator. Now we apply log. यहाँ से अगर हम लोग चाहेंगे e को हटाना तो log में अप्लाई कर सकते हैं। log अगर हम लेंगे दोनों साइड में लिख सकते हैं log 1 plus delta, this equal to log e to the power h. We apply log on both sides. Log 1 plus x, log e to the power h d, log e to the power x, log e to the power x equal to x. जानते हैं log m to the power n, तो log m to the power n को लिख सकते हैं हम लोग n log m x log e, and the value of log e is equal to 1. यानी we can write e to the power h equal to log e to the power h d, and this value log e to the power x means x only h d. This implies that h d equal to
log 1 plus delta, and we apply logarithmic series. First we apply exponential series, now we apply logarithmic series, and the expansion of logarithmic series log 1 plus x, this equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus dot 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 2 and so on. And this term can be written as log 1 plus x. This implies that hd equal to x, this term is x, delta minus 1 by 2 delta square plus 1 by 3 delta cube minus dot 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 and so on. And it is our second equation. We can write E equal to 1 plus delta, and here we prove the second result, hd equal to delta minus 1 by 2 delta square 1 by 3 delta cube and so on. Now we prove the third result. Third result is delta equal to e to the power hd minus 1. Delta equal to, the third result is delta equal to e to the power hd minus 1. ये थर्ड रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना है, e टू द पावर hd माइनस 1 और 2. देखिए फर्स्ट जो हम लोग प्रूफ किए हैं e इक्वल टू एच डी, और e का वैल्यू होता है 1 प्लस डेल्टा. इस वैल्यू को वहां पे हम लोग पुट करेंगे. वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश फ्रॉम 1 e इक्वल टू e टू द पावर एच डी, and this term can be written as e equal to 1 plus delta, this equal to e to the power hd. By the definition of shifting operator, here we write e equal to 1 plus delta. Therefore we can write delta is equal to e to the power hd minus 1, and we prove here the third. It is the very important differential relation between ordinary differential operator and forward difference operator, shifting operator and so on. Now we explain another topic, factorial notation. What is factorial notation in calculus of finite difference? Factorial notation. Factorial notation. x minus h कंटिन्यूड प्रोडक्ट, लगातार पहला फैक्टर है x और उसके बाद का जो भी फैक्टर है उसमें हम लोग h कांस्टेंट डिफरेंस h डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे यहाँ पे देखिए x है, उसके बाद x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h डॉट 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 x माइनस n minus 1 into h. This term can be written as x n, or it is factorial notation. यानी xn can be written as x, x minus h, x minus 2h, x minus 3h dot 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 x minus n minus 1 into h. यानी है क्या, अगर आपको फैक्टोरियल नोटेशन में देखना है xn, n यहाँ पे यानी एक कंटिन्यूअस फैक्टर का ही प्रोडक्ट है, जिसमें फर्स्ट फैक्टर आपको x से स्टार्ट होगा और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें एक कंटिन्यूअस डिफरेंस होता जाएगा h. यहाँ पे h क्या है, कांस्टेंट ऑफ डिफरेंस. आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग h का वैल्यू कोई पार्टिकुलर वैल्यू 1, 2, 3 भी सेट कर सकते हैं. यानी जहाँ पे xn लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए
सिंपल सा कहीं पे एक्शन है तो एक ऑर्डिनरी पोलिनोमियल है, लेकिन वही जब यहाँ पे ब्रैकेट डाला हुआ है तो ये आपको फैक्टोरियल नोटेशन का ये सिंबल है, दोनों में डिफरेंस होगा, आगे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h, एक्स माइनस 3h एंड सो ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जितना पावर होगा यहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन में उतना ही कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होगा। पहला फैक्टर है एक्स और उसके बाद वाला कंटिन्यूअस है एक्स माइनस एच, उसके बाद वाला एक्स माइनस 2h एंड सो ऑन। अगर हम लोग यहाँ पे चाहेंगे तो एक पार्टिकुलर वैल्यू भी हम लोग सेट कर सकते हैं, यानी हम लोग को अगर डिफाइन करना हो एक्स एन माइनस 1, क्या करेंगे, जैसे वहां पे एक्शन था तो यहाँ पे एन टर्म का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। फर्स्ट फैक्टर आपका एक्स से स्टार्ट, तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्स से ही, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे एन टर्म का, यहाँ पे पावर एन है तो एन टर्म का ही कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, यहाँ पे है एन माइनस 1 तो यहाँ पे एन माइनस 1 टर्म का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 2h एंड डॉट 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 एक्स माइनस एन माइनस 2h, here number of terms is equal to n minus 1, बिकॉज यहाँ पे x माइनस 0 इंटू एच, यहाँ 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा यहाँ पे n माइनस 1, यानी जितना पावर होगा उतना ही टर्म का ही कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, पहला फैक्टर होगा और टर्म से स्टार्ट होगा और धीरे 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 हम लोग ये करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग पार्टिकुलर वैल्यू अगर सेट कर ले, इफ वी टेक h इक्वल टू 1, मान लीजिए कि हम लोग h इक्वल टू 1 अगर सेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए तो x1 यानी क्या आ जाएगा, आपको देखिए एक टर्म है, एक फैक्टर होगा तो पहला केवल x2, यहाँ पे अगर पावर 2 है फैक्टोरियल नोटेशन में तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इसमें दो फैक्टर होगा और पहला फैक्टर होगा x से स्टार्ट, x माइनस h की जगह हम लोग 1 सेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपको x माइनस। अब दोनों को ऑर्डिनरी जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऑर्डिनरी पोलिनोमियल की तरह तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो आपको ऐसा नहीं कि x2 और यहाँ पे x2 दोनों सेम है, बताए थे ये जो सिंबल है ये फैक्टोरियल नोटेशन का, तो यहाँ पे अगर घेर के लिखा हुआ है इसका मतलब फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल है एक्स स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करेंगे देखिए यहाँ पे तो x2 का जो वैल्यू आएगा इन ऑर्डिनरी पोलिनोमियल दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसा नहीं देखिए कि यहाँ पे 2 है, 2 अगर ब्रैकेट में लिखा है तो मतलब फैक्टोरियल नोटेशन है, उसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे गलत से ब्रैकेट में दिया, इसे कंफ्यूजन में नहीं रही। फिर3 मीन्स 3 का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, फिर पहला फैक्टर हो जाएगा x, उसके बाद h का वैल्यू अगर 1 सेट करते हैं तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2 और इसको ऑर्डिनरी पोलिनोमियल की तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ पे जो पोलिनोमियल की तरह आता है, यानी ये 3 इसका पावर 3 और इसके साथ कुछ अदर टर्म भी आएगा एक्स स्क्वायर एक्स एंड सो, यानी दोनों में डिफरेंस है फैक्टोरियल नोटेशन में ऑर्डिनरी पोलिनोमियल। जैसे x2 का वैल्यू आप देखें फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। इसके यहाँ से भाई रिजल्ट भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लिखे हैं कि एक्शन के टर्म कि अगर हम लोग h का वैल्यू 1 सेट करिए तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी वी कैन राइट फैक्टोरियल नोटेशन एक्शन इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2, यहाँ पे क्या किया हम लोग h का वैल्यू 1 सेट कर रहे हैं एंड दिस टर्म लास्ट टर्म कैन रिप्रेजेंट x माइनस n माइनस 2। लास्ट टर्म यही आपका x माइनस n माइनस 1 h की जगह 1 सेट किए तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस n माइनस 2, यानी ये आपको फैक्टोरियल नोटेशन एक्शन का definition है if we take the value of h equal to 1 and this term can be written as, this implies that action is equal to x minus 1 x minus 2 dot 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 x minus n minus 1। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल x माइनस n से, ऊपर भी मल्टीप्लाई